afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, my dear student. Today, we are going to discuss a new chapter, that is globe, latitudes and longitudes. In this chapter, we will discuss the different concepts like globe. What do you mean by globe? What are the advantages and disadvantages of globe? We will discuss in this chapter. Second thing, we will discuss about the important parallels of latitudes. What are the important parallels of latitude and how they help us to determine the different heat zone of the earth. Third is our longitudes. We will discuss about the longitude and how they divide our earth into different time zone. Means what is their relation with the time zone. And last we will discuss about the standard time of the different countries. So in this chapter mainly we are going to discuss about globe, latitude and longitude, and what is the significance all of these. We are going to discuss this. This is a very logical chapter, my dear student. You have to listen it very carefully. That's why I divide it this chapter into the different parts so that you can easily understand this concept. So must be aware, be active during this chapter. My dear student, as you are aware, Earth is known as a unique planet. We discussed this concept in the very first chapter of geography, the Earth in the solar system. So, our Earth, why it is known as a unique planet? Actually, there are a number of reasons behind it that our Earth is called a unique planet. The very first is that our Earth is neither too hot, too cold. यानी कि हमारी जो अर्थ है वो ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी होती है, ना ही too much hot nor too much cold. It has the average temperature of 22 डिग्री सेल्सियस. जो हमारी अर्थ होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है. Second thing is that Earth has the availability of water that is essential for the different living organism. कि हमारी अर्थ के ऊपर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबल है जो अलग अलग प्रकार के प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, उनके सर्वाइवल का कारण बनता है. Third, Earth has the atmosphere, or you can say that Earth has the air that has the different life-supporting gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. So it has the different types of the gases in its air. Due to these reasons, our Earth is known as a unique planet. And my dear student, as you are aware, life is only possible on the Earth. So we live on the Earth's surface, but have you ever seen it as a whole? हम पृथ्वी के ऊपर तो रहते हैं, अर्थ के ऊपर तो रहते हैं. क्या आपने कभी पूरी की पूरी पृथ्वी को देखा है, पूरी अर्थ को देखा है? सो कैन यू से हाउ आवर अर्थ लुक्स लाइक? या क्या आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है कैसी दिखाई देती होगी? यानी कि इन चीजों के जवाब हमारे पास नहीं है. इन द ओल्डन डेज, अगर हम पुराने दिनों की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, people thought that the earth was as flat as table. लोग सोचते थे कि जो अर्थ है आपकी
वो जो है फ्लैट होती होगी, जैसे टेबल फ्लैट होती है, मेज फ्लैट होती है, ऐसे ही जो आपकी जो है टेबल, जो आपकी अर्थ है वो भी आपकी फ्लैट होती होगी। They thought that when they reach the edge of the earth, they would slip down and fall down in the bottomless ocean. वो ये सोचते थे कि जब वो पृथ्वी के एज पर पहुंचेंगे, पृथ्वी के किनारे पर पहुंचेंगे, दे विल फॉल इन दी बॉटमलेस ओशियन, वो नीचे गिर जाएंगे। कहाँ पे? समुद्र में, जिसकी गहराई का हमको नहीं पता है, जिसकी डेप्थ का हमको नहीं पता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ बेटा पुराने जमाने की, यानी कि पुराने टाइम में लोग क्या सोचते थे। लेकिन बट दिस इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू। लेकिन अगर हम आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, इट इज नॉट ट्रू, ये सत्य बात नहीं है। With the advancement in science and technology, man reached into space and viewed the earth with his own eye. यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की सहायता से इंसान जो है वो स्पेस में पहुंच गया और वहां पे उन्होंने जो है अर्थ को अपनी आंखों से देखा। He found that the earth is not flat, कि जो आपकी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। It is spherical in shape, little flattened at both ends like an orange। यानी कि जो आपकी अर्थ है, इट इज स्फेरिकल इन शेप, कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फीयर। प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। प्लीज डू राइट बेटा दिस स्फीयर। स्फीयर मीन्स any round object, any round object, any round object shaped like a ball, shaped, SHAPED, shaped like a ball, यानी कि कोई भी गोल वस्तु जो बॉल की तरह आपकी होती है उसको हम बोलते हैं स्फीयर। तो जो आपकी अर्थ थी, इट इज स्फीयर इन नेचर, इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, यानी कि इसकी जो बनावट है वो आपकी स्फीयर थी। कैसे? इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। ये आपकी जो पोल है, पोल क्या होते हैं बेटा हम लैटिट्यूड में डिस्कस करेंगे, आप बस इतना समझे यहाँ पे कि जो अर्थ का सबसे ऊपर का हिस्सा है और सबसे नीचे का जो हिस्सा है, ये ऊपर और नीचे का जो हिस्सा इट इज स्लाइटली फ्लैटन, वो थोड़ा सा फ्लैट है बेटा। जैसे ऑरेंज होता है ना बेटा, आपने ऑरेंज देखा होगा, ऑरेंज गोल होता है, स्फीयर नेचर होती है, लेकिन ऑरेंज का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है आपका? ऐसे होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, कि जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उस पे ये फ्लैट है, एंड बल्ज इन द मिडल, और बीच में ऐसे है बेटा, ये बल्ज है, बीच में ये आपकी बल्ज है, यानी कि उभरी हुई है यहाँ पे आपकी, यानी कि ये गोल है बीच में से, ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है और बीच में से आपकी बल्ज है, उभरी हुई है, गोल है। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको स्फेरिकल शेप कहते हैं, और इस शेप की वजह से अर्थ को जियोड भी माना जाता है। यानी कि जियोड क्या होता है? जियोड क्या होता है बेटा? स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्ज इन द मिडल। तो आपकी जो अर्थ है बेटा, ये जो है आपकी जो है स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल, और बीच में से आपकी जो है ये आपकी जो है बल्ज है, आपकी उभरी हुई है। तो ऐसा हम जो है अर्थ के बारे में जानते हैं। तो जो आपकी अर्थ है उसकी अर्थ को अगर आपने देखना है तो हमने जो अर्थ का एक रेप्लिका बनाया है, यानी कि रेप्लिका होता है किसी भी चीज की नकल करना, किसी भी चीज की कॉपी करना। हमने जो अर्थ की एक कॉपी बनाई है उस कॉपी को हम बोलते हैं बेटा ग्लोब। क्या बोलते हैं बेटा उस कॉपी को? हम ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा भानु? ग्लोब बोलते हैं। सो ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, कि जो आपका जो ग्लोब होता है ये अर्थ का आपकी जो है एक ट्रू मॉडल होता है, यानी कि अर्थ वास्तव में ऐसी दिखाई देती है। और मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स छोटी फॉर्म, मिनी, मिनी का मतलब क्या होता है? छोटा, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ की जो है आप जो है इसको मिनिएचर फॉर्म कह सकते हैं। तो ग्लोब जो है बेटा जैसे ये आपकी अर्थ होती है,
ऐसा ही आपकी जो जैसे अर्थ है, तो अर्थ की रेप्लिका को हम जो है ग्लोब के नाम से जानते हैं। ग्लोब जो होता है ये आपका अर्थ का एक मॉड्यूल होता है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा आपको? यस और नो? गुनी क्लियर हुई बेटा? यस। तो ग्लोब क्या होता है बेटा? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। Globe, as you are aware, is a true model of the earth where countries, continent and oceans are shown in their correct size. ग्लोब के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा कि जो आपकी जो अर्थ होती है, आपकी अर्थ के ऊपर जो कंट्रीज हैं, जैसे कि ये अलग अलग कंट्रीज हैं, या ये जो कॉन्टिनेंट एज ए वोल है, इस तरह से आपके जो कॉन्टिनेंट है, या जो आपका ये ब्लू कलर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा, ओशियन जो है, आपके सीज जो हैं, ठीक है बेटा, ये सारे के सारे जो हैं उनके जो है करेक्ट साइज में दिखाए होते हैं, यानी कि हम उनका स्केल बनाते हैं, उस स्केल के आधार पर हम जो उनको ग्लोब के ऊपर जो है डिपिक्ट करते हैं। तो ग्लोब पे जो है आपका जो है इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, और इस पे जो है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशन जो है वो करेक्ट साइज में आपके दिखाए जाते हैं। A globe is not fixed. ग्लोब कभी भी फिक्स नहीं होता है, स्टेगनेट नहीं होता है, बट कैन बी रोटेटेड एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर व्हील। ये हमेशा जो है आपका घूमता रहता है टॉप स्पिन से, आपका ऊपर के हिस्से से, यानी कि ये आपका ग्लोब है बेटा, ये आपका जो है फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे जो है इसके एक्सिस दिए हुए हैं बेटा। ये नॉर्थ पोल इसको हम जानते हैं, इसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है लैटिट्यूड में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। बस यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये आपके जो है एक्सिस है, एक जो है इसका एक्सिस होता है, यहाँ पे ये इसके द्वारा जो है आपका ये जो है स्टेगनेट होता है, और ये वेस्ट टू ईस्ट आपका घूमता है, जैसे अर्थ आपकी वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है। आपने देखा होगा अर्थ कभी नहीं रुकती है, ऐसे ही ग्लोब भी जो आपका वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करता रहता है। किससे? इन एक्सिस से, इन सुइयों से, इन नीडल से। ग्लोब वेरी इन साइज। ग्लोब का जो साइज होता है वेरी, वेरी मीन्स डिफरेंट। ग्लोब का जो साइज होता है वो आपका अलग अलग साइज होता है, एंड टाइप, और ग्लोब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फ्रॉम स्मॉल, छोटा ग्लोब भी होता है, पॉकेट ग्लोब, ऐसा भी ग्लोब होता है जिसको आप पॉकेट में रख सकते हैं, टू लार्ज, और बहुत बड़े बड़े ग्लोब भी होते हैं। अब ग्लोब जो आजकल अलग अलग तरीके के भी ग्लोब बनाए जाते हैं, जैसे बैलून, बैलून की शेप में आपका ग्लोब बनाया जाता है, लाइक ग्लोब्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड, यानी कि अगर आप उसमें एयर फिल कर देते हैं तो वो आपका उभर जाता है, अगर आप उसकी एयर निकाल देते हैं तो वो आपका इनफ्लेट, फ्लैट हो जाता है, समतल हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से जो आपका ग्लोब है वो अलग अलग साइज में भी आपका आता है। अब बेटा हम बात कर रहे थे एक्सिस की। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि जो आपकी अर्थ जो होती है, या कोई भी जो प्लेनेट होता है, उसकी दो आपकी मूवमेंट होती है बेटा, एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। जो रोटेशन क्या होती है मैंने आपको बताया था, व्हेन अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, जब अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन एलोंगेटेड पाथ, दैट इज द रेवोल्यूशन। तो अभी उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको किस चीज पे ध्यान देना है कि जो आपकी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। अब आपने देखा होगा बेटा, यहाँ पे ये पिक्चर देखिए आप, ये आपकी अर्थ की एक शेप है बेटा, अर्थ की जो शेप है ये उसका एक एक्सिस है। अब अर्थ का जो एक्सिस होता है वो बिल्कुल वर्टिकल नहीं होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है, इट इज टिल्टेड। ये आपका टिल्टेड होता है बेटा, कितने एंगल पर? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दैट इज दी 23.5 डिग्री। आप देखेंगे बेटा जो आपका सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है बेटा। अब यहां से लेकर ऐसे और ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल जो है आपका बनाता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बना रहा है, लेकिन ये जो एक्सिस है ये टिल्टेड है बेटा आपका। यहाँ पे देखिए आप, ये एक्सिस जो है आपका यहाँ पे आपका ऐसे टिल्टेड है। तो ये जो टिल्टेड है बेटा आपका, ये 23.5 डिग्री पे है, और यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है
ये एंगल बना रहा है बेटा आपका 66.5 डिग्री का, यानी कि 23 ये आपका झुका हुआ है, तो टोटल एंगल जो ये आपका बन गया वो आपका बनता है 66.5 डिग्री। तो द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, वास्तव में जो अर्थ के ऊपर ऐसी कोई भी जो है लाइन नहीं होती है, ये हमने केवल क्या की गई है, इमेजिन की गई है, हमने इसको केवल माना है कि जो एक्सिस होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है, अराउंड विच द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसपे जो आपकी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करती है। अर्थ हमेशा कैसे रोटेट करती है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना बेटा इस चीज को। अर्थ कैसे रोटेट करती है बेटा, हमेशा वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। इन द ग्लोब इट इज सीन एज द नीडल, अब ग्लोब पे ये जो एक्सिस है बेटा ये नीडल के रूप में दिखाई देता है आपको, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये जो दो नीडल है बेटा, ये एक्सिस है बेटा आपके, तो ये एक्सिस आपको एज ए नीडल जो है ग्लोब के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि हमने इसकी जो अर्थ का जो है ये हमने एक मॉडल बनाया है। विच फिक्सेस द अर्थ एट अ टिल्टेड एंगल, जो अर्थ को जो है टिल्टेड एंगल पर जोड़कर रखता है, और वो एंगल कितना है बेटा, यहाँ पे ये देखिए आप एरो मार्क से आपको दिखाई देगा 23.5 डिग्री एंगल पर ये आपका जो है टिल्टेड है, और ये पूरा का पूरा जो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका बना रहा है, ये पोर्शन जब आप देखते हो तो ये एंगल है बेटा आपका 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री में जब आप 23.5 डिग्री को जोड़ देते हो तो वो एग्जैक्ट आपका यहां तक 90 डिग्री बन जाता है। द एक्सिस पासिस थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये जो आपका पोर्शन है बेटा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं साउथ पोल। तो आपका जो है, आपका जो एक्सिस है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर से गुजरता है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को अपर पार्ट इज नोन एज द North Pole and the lower part is known as the South Pole. So this is the information about the globe and its axis. अब आगे बात हमारी आती है बेटा एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब, कि जो आपका ग्लोब होता है उसके क्या क्या एडवांटेजेस आपके होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, बहुत से आपको पता लग गए होंगे। द वेरी फर्स्ट इज इट करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, ये क्या करता है, आपकी अर्थ की एक्चुअल शेप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी अर्थ की ये शेप होती है बेटा, क्या शेप अर्थ की, स्फेरिकल शेप। कौन सी शेप है बेटा अर्थ की, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, फ्लैटेंड एट द पोल, ये जो है आपकी जो है पोल के ऊपर, यानी कि ये जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके ऊपर ये थोड़ी सी फ्लैट है बेटा, मामूली सी बिल्कुल, और बल्ज इन द मिडल, और यहाँ पे आपने देखा होगा मिडल में ये आपकी उभरी हुई है बेटा, चपटी है ये यहाँ पे आपकी, ये पोर्शन आपका उभरा हुआ है, ये देखिए बेटा आप, और यहाँ पे ये पोर्शन आपका उभरा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये जो है आपकी बल्ज है। तो ट्रू शेप को अर्थ की जो है कौन दिखाता है बेटा, आपका ग्लोब जो है वो शो करता है। दूसरी बात बेटा, इट शोज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जैक्टली, अभी मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्थ पोल है अपर पार्ट और जो साउथ पोल है लोअर पार्ट, उसको एग्जैक्टली जो है आपका जो है ग्लोब जो है शो करता है। इट शोज द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, आपके जो कॉन्टिनेंट है, ओशियंस है, सीज, कंट्रीज, ऑल दीज थिंग, इनको करेक्ट साइज में आपका जो है ग्लोब दिखाता है। इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यानी कि दो पोल के बीच में की जो दूरी है, उनका जो डिस्टेंस है या कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है आपकी जो है ग्लोब के द्वारा पता लगती है। कैसे लगती है, वी यूज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है करेंगे। तो मैं बताऊंगा बेटा कि किसी भी स्थान की डायरेक्शन जो है उसको कैसे हम जो है पता लगाते हैं कि कोई स्थान जो है कहाँ पे आपका रहा है या सिचुएटेड है, यानी कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे हम उसकी लोकेशन को ज्ञात कर सकते हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग बेटा, दैट्स व्हाई दिस इज द लॉजिकल चैप्टर। इट टेल्स द
करेक्ट लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये करेक्ट लोकेशन आपकी बताएगा कि एग्जैक्ट आपका स्थान कहाँ पे लोकेटेड है, डायरेक्शन को बताएगा, ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कहाँ पे है, यानी कि प्रॉपर डायरेक्शंस आपकी जो है ये बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है किसी भी लोकेशन को कैसे गेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा बेटा। लुक एट एनी ग्लोब, जब भी आप किसी भी ग्लोब को देखते हो बेटा, यू कैन सी इट इज फिटेड इन अ टिल्टेड वे, टिल्टेड में झुका होना, ये यानी कि आपका बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ये क्या होता है, ऐसे झुका हुआ होता है, ये हमेशा टिल्टेड होता है। कितने एंगल पर बेटा, मैंने अभी बताया था आपको 23.5 डिग्री। कितने एंगल पे झुका हुआ होता है बेटा, 23.5 डिग्री। सिया कितने एंगल पर झुका हुआ होता है बेटा, 23.5 डिग्री। ओके, और वो जो झुका हुआ होता है वो टोटल एंगल कितना बनाता है बेटा, 66.5 डिग्री। टोटल एंगल कितना बनाता है बेटा, 66.5 डिग्री। तो इस तरह से ये टिल्टेड होता है, वे इन द स्टैंड एंड इन द सेम वे द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स ऑर्बिट, और ऐसे ही अर्थ जो है वो भी अपने ऑर्बिट में जो है टिल्टेड होती है। ऑर्बिट याद है या भूल गए, क्या होता है बेटा ऑर्बिट, द पाथ ऑन विच अर्थ ऑन विच प्लैनेट मूव अराउंड द सन, यानी कि जब आपके डिफरेंट प्लैनेट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो अपने अपने ऑर्बिट में लगाते हैं, अपने अपने कक्ष में लगाते हैं, उनका एक फिक्स पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, यानी कि जैसे मरकरी है उसका अलग ऑर्बिट होगा, मार्स का अलग होगा, जुपिटर का अलग होगा, अर्थ का अलग होगा, यानी कि हर एक प्लेनेट का अलग अलग ऑर्बिट होता है। So these are the advantages, these are the merits or benefits of the globe. As you are aware my dear student, कोई भी जो वस्तु होती है उसके जब फायदे होते हैं तो एक आध नुकसान भी होता है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब, कि ग्लोब के जो है आपके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। The very first disadvantage, it is inconvenient to carry the globe from one place to another place, यानी कि ये आपका टिल्टेड होता है, घूमता रहता है, तो इसको आप जो है एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जब लेकर जाते हैं तो आप आसानी से नहीं ले जा सकते। इनकन्वीनियंट, असुविधाजनक रहता है बेटा, लेके तो जा सकते हैं लेकिन असुविधाजनक रहता है। इसके लिए क्या हुआ है, हाउएवर, हालांकि सम फोल्डिंग एंड पॉकेट्स ग्लोब हैव बीन डेवलप्ड, हमने जो है कुछ फोल्ड होने वाले और पॉकेट ग्लोब जो है हमने जो है वो क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। दूसरा, ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी सीन ऑन द ग्लोब एट वन टाइम, ग्लोब पे जो हम जो है केवल एक टाइम में एक ही पार्ट जो है वो देख सकते हैं, यानी कि जो पोर्शन हमारी आंखों के सामने होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस हैंड को देखूं, आप देख रहे होंगे बेटा कि आपको मेरा बैक साइड दिखाई दे रही है इस हाथ की, जबकि मेरे को कौन सी साइड दिखाई देगी, गुनी कौन सी साइड दिखाई देगी बेटा, जो मेरे सामने है। ठीक है बेटा, और आपको बैक साइड दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही ग्लोब में आपको हमेशा आगे की साइड दिखाई देगी जो आपकी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के पीछे वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता है। ग्लोब की यही एक ड्रॉबैक होती है कि इसमें हम केवल एक ही पार्ट को जो है देख सकते हैं, पूरे के पूरे ग्लोब को हम जो है एक साथ नहीं देख सकते। इट डज नॉट हेल्पफुल इन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और कुछ स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि मेन इंफॉर्मेशन ही आप उस पर देख सकते हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप उस पर नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट हेल्पफुल इफ यू वांटेड टू गिव समवन डायरेक्शन टू अ प्लेस नियर योर स्कूल और होम, यानी कि अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं ग्लोब पे कि आपका स्कूल कहाँ पे है, आपका होम कहाँ पे है, तो इस चीज की डायरेक्शन जो है आपको, इस चीज के बारे में आपको जो है ग्लोब से पता नहीं लग सकता। इस चीज के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं बेटा, मैप का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं बेटा, मैप का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल फोन में देखा होगा, गूगल मैप आता है जो सैटेलाइट से आपका अटैच होता है, उस पर आप अपनी जगह की लोकेशन को देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब पे आप इस लोकेशन को
नहीं देख सकते। ग्लोब पे आप मोटी मोटी जो चीजें होती है जैसे कि कॉन्टिनेंट है बेटा, ओशियंस है, सीज है, कंट्रीज है, उनकी लोकेशन को आप देख सकते हो। आप जो है अपने घर की लोकेशन को उस पे नहीं देख सकते। तो मैप क्या होते हैं बेटा, हम जो है चैप्टर 4 में उसके बारे में पढ़ेंगे। टू शॉर्ट आउट दीज शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ग्लोब, इन कमियों को दूर करने के लिए मैप्स आर डेवलप, आपके जो मैप जो है वो डेवलप किए गए हैं। अबाउट मैप वी विल डिस्कस इन दी चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी। So these are the disadvantages of the globe. So my dear student, this is enough for today. हम बहुत कम पोर्शन करेंगे बेटा ताकि आपको जो है समझ में आए। छोटा छोटा पोर्शन हम जो है इसमें करते हैं बेटा। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब टुडे। आज हमने एक ही कॉन्सेप्ट किया बेटा, ग्लोब। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ओनली एंड ओनली अबाउट लैटिट्यूड। एक दिन में हम एक ही पोर्शन जो है वो करेंगे बेटा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ if you want to ask anything, if there is any question in your mind, you can ask me now. Thank you. Have a nice day. God bless you all. If you have still any confusion in the matter of globe, you can just drop a WhatsApp message to me. I will sort out your problem. But again beta, put more emphasis on this chapter. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत छोटा छोटा मैं आपको कराऊंगा। और आज का होमवर्क बेटा, यू हैव टू जस्ट रीड द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। केवल एक ही पेज पढ़ना है बेटा आपने, ठीक है बेटा, जिसमें ग्लोब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा बेटा, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा, आप मेरे को ध्यान से सुनेंगे तो वो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। Thank you all. Have a nice day. Stay healthy. Stay safe. God bless you all.